الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا لأداء صلاة المغرب في جماعة. هذه الصلاة المكتوبة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أفضل الأعمال التي أرادها الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إليه هي الصلوات المفروضة. أحب الأعمال إلى الله هي ما افترض الله على المرء المسلم، فالصلوات المفروضات من أفضل الأعمال على الإطلاق عند الله سبحانه وتعالى أجرا. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. मेरे मुहतरम भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें मगरिब की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अपने दीन के लिए चंद घड़ी बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हमें अपने घर के अंदर जमा कर लिया। ولهذا يا إخوان الكرام المجالس التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى هي أعظم المجالس. كذلك أعظم المجالس ما كانت في بيت الله وما كان فيها ذكر لله. فأفضل البقاع في الأرض المساجد، خير البقاع على الإطلاق في الأرض المساجد، وأفضل المجالس ما يذكر فيها الله عز وجل. لأجل ذلك جلسنا يا إخوان الكرام ونسأل الله أن يوفقنا للإخلاص في هذا المجلس. جلسنا لنذكر الله عز وجل، نعظم الله عز وجل، لأن الله عز وجل عظيم بذاته يحب التعظيم. الله تبارك وتعالى كبير يحب أن يذكر. ما خلق هذا الكون ولا خلق الجن والإنس إلا أن حتى يكبروه ويعظموه. فلهذا يا إخوان الكرام هذه المجالس إذا انتسبت إلى الله فتصبح أصحاب هذه المجالس لهم قيمة وعظمة عند الله تبارك وتعالى. दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन मजलिस, सबसे बेहतरीन पुर नूर मजलिस या अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस होती है, अल्लाह के दीन की बातों की मजलिस होती है जो अल्लाह के घर के अंदर मुनाकिद होती है। जितने भी मजालिस हैं दुनिया के अंदर मुनाकिद हो रही हैं, सबसे बेहतरीन मजलिस ये अल्लाह के घर की मजलिस है। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो दीन के लिए चंद घड़ी निकाल दे, दुनिया और दुनिया माफिया से जो कुछ दुनिया के अंदर है उससे बेहतर है। अल्लाह ताला ने हमें दीन के लिए जमा कर लिया, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान है। فلهذا يا إخواني الكرام ربنا عز وجل مدح نفسه في القرآن العظيم. في كل موقف الله سبحانه وتعالى يبين لنا عن عظمته وقدرته في القرآن الكريم. ففي أعظم آية في القرآن الكريم نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام هي آية الكرسي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أعظم آية في القرآن لأنها تمدح الله عز وجل، والله يثني على نفسه فيها بصفات كثيرة. يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي لا ينام أو لا يموت، حي لا يموت، قيوم قائم على كل أمر، مدبر لكل أمر، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في السماوات ولا في الأرض، في الكون كاملا، كله في قبضة الله وتحت أمره سبحانه وتعالى. अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बातें बड़ी हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ज़ात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपनी सिफ़ात बयान की है। सबसे अजीम, सबसे बड़ी सूरह बकरा के अंदर एक आयत जो सरदार आयत कहलाती है, आयतों की सरदार वो है आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हई ज़ात है और क़य्यूम ज़ात है। हई से मुराद हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़ात, जो ना ख़त्म होने वाली ज़ात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, अबदी से अज़ली तक रहने वाली ज़ात एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और क़य्यूम ज़ात है, ताकत वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी सब ज़ाइफ़ हैं, हम ज़ाइफ़ हैं, कवी ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है।
فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم كما قال في هذه الآية سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، كيف الإنسان ينعس؟ هكذا، يعني إذا نعس وفي يده شيء يسقط. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي كيف لا تأخذك سنة ولا نوم؟ قال يا موسى لو كان في يدك كأسا من ماء فأخذتك سنة من نوم ماذا يحدث؟ فيقول يعني بالحقيقة احنا نقول تسقط. فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لو أخذتني سنة من نوم لسقطت السماوات جميعا على الأرض. الله अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है, न उनको ऊँग आती है न उनको नींद आती है। ऊँग से मुराद हल्का सा यूँ जो नींद से पहले जो झटका होती है, नींद की झटका ऊँग जिसे कहते हैं, न अल्लाह को ऊँग आती है न नींद आती है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि या अल्लाह आपको ऊँग नहीं आती, इससे मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने हाथ के अंदर एक गिलास रखो, पानी का गिलास। मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में गिलास रखे, पानी का गिलास, और ले खड़े हुए थे पानी का गिलास लेकर। तो उनको ऊँग आई, तो जैसे ऊँग आई तो पानी का गिलास गिर गया और वो टूट गया। उस वक्त तो स्टील का गिलास नहीं होता, मिट्टी का गिलास होगा, टूट गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर मैं भी इसी तरीके से मैं भी ऊँग आ जाए मुझे या मैं सो जाऊं तो दुनिया का निज़ाम भी धर्म भरम हो जाएगा, सब तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। فلهذا يا اخواني الكرام الله قيوم سبحانه وتعالى كما بين لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم نقص، نحن نحتاج للراحة ونحتاج إلى تجديد الطاقات. الذي لا ينام يعذب، وبعض الناس لا يستطيع النوم فيأخذ أدوية، يشرب أدوية حتى ينام، حتى يريح دماغه ويريح أعضاء جسده. لكن الله عز وجل تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا منذ سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لهذا الله قائم على كل شيء، يدبر أمر كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. ما استغراقية، أي كل ما في السماوات وما في الأرض في قبضة الله، لا يفلت من قبضة الله ذرة. وهذا لو نفلتت من قبضة الله ذرة لكان نقصا في ألوهيته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. अल्लाह ताला हर चीज़ पर कब्ज़ा कुदरत रखने वाली ज़ात है, न उनको ऊँग आती है न नींद आती है। ज़मीन आसमान के अंदर जितने भी ख़जाने हैं, जो चीज़ भी है, सब अल्लाह के अहाते के अंदर है। सब चीज़ को अल्लाह ताला देख रहे हैं, हर चीज़ को अल्लाह ताला सुन रहे हैं। जितनी भी चीज़ें आसमान और ज़मीन के जितने भी ज़र्रात है, जो ज़र्रे के अंदर है उसको भी अल्लाह देख रहे हैं, जो पत्थरों के अंदर है उसको भी अल्लाह देख रहे हैं, जो हवाओं के अंदर है उसको भी अल्लाह देख रहे हैं, जो इंसान के दिलों के अंदर पोशीदा है उसको भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि हमारे इल्म भी उनके अहाता नहीं कर सकते। فالله عليم سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علمه مطلق سبحانه. كل العلوم هي بيد الله سبحانه وتعالى، التي نعلمها والتي لا نعلمها. هذه العلوم التي الله أطلعنا عليها هذه شيء بسيط من علم الله تبارك وتعالى. ذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. علم الله مطلق لا يمكن أن يتصور في الأذهان. فالله عليم سبحانه، يعلم صغائر الأمور ودقائق الأمور، يعلم ما في السر، ما في القلوب، وما سيفكر في القلوب فيما بعد، ما سيأتي على خواطر الخلق فيما بعد، الذين خلقوا والذين لم يخلقوا. فعلم الله مطلق سبحانه، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. अल्लाह की ज़ात तो ऐसी ज़ात है, उसका इल्म इतनी वसी इल्म है कि हमारा इल्म भी उसके इल्म के अहाता नहीं कर सकती। ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ के खालिक मालिक राज़िक एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हर चीज़ को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ज़मीन और आसमान के मालिक भी अल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है कि फरमाते हैं कि काली रात हो, काले पहाड़ हो, काले चट्टान के नीचे काली चूंटी हो, और उस चूंटी के चलने से जो उसके नन्हे नन्हे पाँव से जो लकीरें बन रही, अल्लाह ताला उसको देख भी रहे हैं, और उसके सीने के अंदर जो दिल धड़क रहा है अल्लाह ताला उसको भी सुन रहे हैं।
जब इंसान के दिल के अंदर कोई ख्यालात पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उसको भी सुनते हैं, उसको भी देखते हैं, और वो ख्यालात जो अभी पैदा नहीं हुआ, एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद पैदा होगा, अल्लाह ताला उसको भी सुनते हैं, उसको भी देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारे आंखों की खयानत को भी जानते हैं और तुम्हारे सीनों के अंदर छुपे हुए राजों से भी वाकिफ हैं। فلهذا إخواني الكرام مهما تحدثنا عن عظمة الله تبارك وتعالى وقدرة الله ويعني كبرياء الله لا يمكن أن يحاط الله عز وجل، لا يمكن، هذا شيء فوق الأذهان وفوق العقول ولا يمكن أن يتصور في الأذهان. أحد الأعراب كان يطوف حول الكعبة فكان يقول يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ज़ात है कि हर चीज़ को भी देखते हैं, हर चीज़ को भी सुनते हैं। ज़मीन और आसमान के अंदर जितने भी खलाई मखलूक हैं, ज़मीनी मखलूक है, ज़मीन के अंदर रहने वाली जितने भी चीज़ें, सब चीज़ को अल्लाह ताला देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसी ज़ात है, वो बारिश के कतरों को भी जानते हैं, थनों के अंदर क्या है अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं, पेट के अंदर क्या है, लड़का है लड़की, अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। और अल्लाह ताला समुंदर के पानी को भी जानते हैं कि इसके अंदर कितना पानी है, समुंदर के अंदर कितना वजन है। अल्लाह पहाड़ों के वजन को भी जानते हैं। अल्लाह ताला दरख्त के पत्तों को भी जानते हैं कि इस दरख्त के अंदर कितने पत्ते हैं। जितने फरिश्ते हैं ज़मीन आसमान के, अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है, हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है। لهذا يا اخواني الكرام الله سبحانه وتعالى ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الرحمه، بين الله سبحانه وتعالى عنه انه في كمال الرحمه للخلق، كمال الرحمه في النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك جاء ليعلمنا عن الله عز وجل في الليل والنهار كيف نطيع الله عز وجل، كيف يكون الله عز وجل معبودنا في كل لحظه، نطيعه ونعلم ما لله علينا في كل لحظة، ونحاسب أنفسنا على النقص في سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فما يكون من نقص يكون في نقص في إيماننا، إذا نقصت السنن في حياتنا نقص الإيمان ونقص تعظيم الله في قلوبنا. فالله النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذه السنن، وكذلك حتى نكون متبعين له، فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه الهداية، ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة ليس بعدها ضلالة. अल्लाह ताला ने हमारे और आपको, अल्लाह ताला ने आखिरी उम्मत बनाया है। आखिरी उम्मत बनाकर और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ताकि हमें राह रास्त दिखाए, ताकि हमें अल्लाह की पहचान करवाएं, अल्लाह की मारिफत करवाएं, अल्लाह के तारुफ करवाएं और अल्लाह ताला के रास्ते में सीधे रास्ता बताएं, ताकि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है। जो अल्लाह के नबी का रास्ता अपनाएगा, अल्लाह के नबी के इत्तिबा करेगा, वही जन्नत में जाएगा। और जो शख्स अल्लाह के नबी के इत्तिबा नहीं करेगा, अल्लाह की इताअत नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगा, उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ भी नहीं है। فأعظم العبودية يا أخواني الكرام للمسلم لربه عز وجل، أو عبودية المسلم لربه هي الصلاة. الصلاة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربنا عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه. فأعظم الفرائض هي الصلاة، أعظم الفرائض هي الصلاة، هي مفتاح الجنة وسبب لدخول الجنة، وتاركها خاسر في الدنيا والآخرة. لهذا يا أخواني الكرام كيف نحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها، وكيف تكون عنواننا في هذه الدنيا. الصلاة بالنسبة لديننا كالرأس بالنسبة للجسد، إذا انقطعت اليد يعيش الإنسان، انقطعت الرجل يعيش الإنسان، لو انقطعت أذنه يعيش، لو راحت عينه يعيش، لو راح عينيه كل الثنتين أعمى يعيش، يأكل ويشرب ويعيش حياته.
لكن إذا انقطعت الرأس فلا حياة. فالصلاة هي عمود الدين، بل هي الرأس للديننا، بل هي رأس الإسلام وعموده سبحانه. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. हमने कलमा पढ़ा तो हम पर दीन के बहुत सारे अहकामात लागू होंगे, जिनमें सबसे पहले है नमाज। नमाज का मर्तबा दीन के अंदर ऐसा है जैसे इंसान के बदन के लिए सर होता है। जैसे इंसान बगैर सर के रह नहीं सकता, वैसे ही कोई इंसान नमाज पढ़े बगैर कामिल मुसलमान हो नहीं सकता। हाँ, अगर किसी का पाँव नहीं है वो इंसान जिंदा रह सकता है, किसी का हाथ ना हो वो भी जिंदा रह सकता है, किसी का नाक कान आँख ना हो वो इंसान भी रह सकता है, लेकिन जिसका सर ही ना हो वो इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। इसी तरीके से जो शख्स मुसलमान तो नाम का कहलाता है लेकिन काम का मुसलमान नहीं है, उसकी मिसाल ऐसे ही जैसे बगैर सर का इंसान, जैसे इंसान बगैर सर के रह नहीं सकता वैसे ही कोई इंसान नमाज पढ़े बगैर कामिल मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसको कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। لهذا إخواني الكرام كيف نتعلم هذه الصلاة على حقيقتها، يعني ما هو مقولاتها وما هي أركانها وواجباتها وسننها، وكيف الوضوء الصحيح، نتوضأ على الوجه الصحيح حتى تقبل صلاتنا. فالوضوء مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنة، لأجل ذلك لا بد من التعلم، ونذكر الله عز وجل على كل الأحيان كما بينا في بداية الكلام، وكذلك كيف نتعامل مع بعضنا البعض بأحب الكلام، نوجه الكلام الطيب لبعضنا البعض، لا نجرح بعضنا البعض، فنحن المسلمون لا يعني كما بين أحدهم قال في زمن التابعين لأخيه وقد اغتاب أحدا، قال قاتلت الروم؟ قال لا. افهم كلامي. قاتلت الروم؟ قال لا. قاتلت الفرس؟ قال لا. قال سلم منك الفرس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. لهذا يا أخواني الكرام لا بد من الإنسان أن يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه لئلا يؤذي الآخرين. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان خير مثال، والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذه الأخلاق. फरमा रहे हैं कि हम नमाज जब पढ़ें तो उसके अंदर हर चीज़ की पासदारी रखें, सुन्नत और ये फ़राइज़ और वाजिबात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वज़ू जब हम करेंगे तो वज़ू नमाज की चाबी है, नमाज की कुंजी है, और नमाज जन्नत की कुंजी है। जब हमारी वज़ू अच्छी होगी तो नमाज अच्छी होगी, जब नमाज अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत में ही बनेगा। जब हमारे वज़ू ठीक नहीं होगा, फिर जब बग़ैर वज़ू के गलत वज़ू करके हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी, जब नमाज नहीं होगी तो हमारा ठिकाना जहन्नम की सिवा किसी चीज़ में नहीं होगा। और फरमाते हैं कि हमारी नमाज अच्छी हो जाए, शानदार जानदार हो जाए, इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखना है, सहाबा की ज़िंदगी को देखना है कि सहाबा के ईमान कैसा था, सहाबा किस तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ के किस तरीके से अपने मसले हल करवाते थे। कोई भी मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो या छोटे से छोटा मसला हो, सहाबा नमाज पढ़ते थे और अपने मसले को हल करवा देते थे नमाज के ज़रिए। لهذا إخواني الكرام الله يوفقنا كذلك كيف يعني تكون أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نبتغي بها مدحا ولا ثناء، فالذي يبتغي ذلك يبطل عمله، نعوذ بالله من ذلك. نحن يعني نتكلم لأجل الله وفي سبيل الله، لعل الله يقبل منا هذا الكلام. نسأل الله أن يوفقنا لكل عمل نقوم به أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. أيضا كذلك يا أخواني الكرام كيف يعني هذه الصفات تنتشر في الناس وكيف نقوم على هذا الجهد المبارك، فلا بد من أن يكون هناك يعني حركة من المساجد تخرج للناس، ويعني من خلال الأمثلة نجد أن المساجد الذي تكون فيه الجماعة تحيا به بيئة الإيمان، الحلقات التعليم وقيام الليل والمدارسة في النهار. كذلك إخواني الكرام كيف هذه المساجد تبقى مفتوحة 24 ساعة، تبقى مفتوحة وفيها أهلها. الذي يعني المسجد الذي يكون فيه أعمال هذا المسجد حي، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان حيا 24 ساعة، يعني شفتات زي ما نقول في اليوم 8 ساعات الصحابة يتبادلون من أشغالهم إلى المسجد ومن المسجد إلى بيوتهم، يقومون بالأعمال حتى يقيموا أعمال الدين وينشروا هذا الخير. فانتشر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها. جميع مساجد الأرض الآن التي تبنى والتي بنيت في السابق
والتي أقامها المسلمون كلها قامت بسبب جهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لأجل ذلك إخوان الكرام لا بد أن نتفكر كيف نحيي مساجدنا وكيف نخرج في سبيل الله، نتعلم هذه الصفات المباركة ونحيي أثر هذا الخير في الناس حتى الناس يفهموا دينهم ويخرجوا في سبيل الله. فالحمد لله الآن ترتيب 4 شهور في العمر، 40 يوم في السنة، 3 أيام في الشهر، هذا أقل القليل، لكن الحمد لله في بلادكم 7 أشهر وسنة وزيادة، هذا من فضل الله عليكم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستعداد. آمين. مستعدين إن شاء الله. إن شاء الله. फरमा रहे हैं कि पहले उम्मत में जब बिगाड़ हो जाता था, उम्मत बिगड़ जाती, तो पहले अल्लाह ताला नबियों को भेजकर उम्मत को राह रास्त दिखाते थे कि ये सीधा रास्ता है। अब हम सब का अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये ख़त्म नबूवत के सदक़े मेरा और ये आपका काम है। इस काम को सीखने के लिए बड़ों ने तरतीब रखी है कि 4 माह लगा के इस काम को सीखा जाए और मकाम पहुँच कर सारी ज़िंदगी करने का अज़म किया जाए। तो तमाम साथी का इरादा है ना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह खड़े होकर अपने इरादे का इजहार फरमाएं। Ya Allah. गुलशरा सन इंशाअल्लाह मशवरे के साथ साथ मेरे एक जमात बहरों ने उनके लिए माशाअल्लाह। गुलशरा जी हाँ गुलशरा माशाअल्लाह कबूल फरमाएं। आमीन। मशवरे के साथ साथ माशाअल्लाह अल्लाह यजज़िक। अल्लाह कबूल फरमाएं। क्या नाम